So, hello everyone. I welcome you all to this class on biotechnology in its application on NEET for NEET UG. So, this is an introductory class. So, let's begin the class. So, this is something about me. You can find me uh, by searching my name Himanshu Yadav. So, you will be getting in the CSIR UGC NET category. So, basically, I teach in the CSIR UGC NET category. So, I'm expert of CSIR UGC NET and as well as I'm expert of NEET JR, NEET also, NEET UG also. So I've qualified ARS NET in agriculture biotechnology and I have cleared ARS BT with top ranks. So this is something about me. So I've done my MTech in biotechnology in biochemical engineering at IIT Kharagpur. So this is in general something about me. So I'm expert at biotechnology. Yeah, good evening, Vanshika. Good evening, everyone. Very good evening to everyone. So I hope this session will be useful for each one of you. So this is my referral code. So don't forget to use my referral code. My referral code is HY10. So this is my referral code. So this is my referral code, and don't forget to use. So this is me, myself Himanshu Yadav. So what is biotechnology? So so what is biotechnology? So basically इसमें क्या होता है कि we use the biological systems जैसे कि we use the microorganisms या उनसे बनी हुई cells या molecules to solve the problem or to make useful products. So it is यहाँ पे क्या होता है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी को यूज करते हैं जो कि उनकी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू मेक अ यूजफुल प्रोडक्ट. या तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या तो वो कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाएगा. सो दैट इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम such as microorganism. Then there are whole cells या फिर their molecule which they are producing to solve the problems or to make useful products. So this is the biotechnology. So as you know that DNA is the basis of all things. So it is the hereditary genetic material. So DNA का जब replication होता है when it is transferred from one cell to another cell, so it has its own properties, so it carries its own genetic makeup. So जिससे कि वो ऑफस्प्रिंग्स पे भी वो असर दिखाता है. सो 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 बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एंड देन देर इज यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सो इसमें देर इज डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर obtaining maximum benefits to man and other forms of life. In case of biotechnology, there is use of living organisms for manufacture of useful products. So it may involve algae, it may involve bacteria, so it may involve fungi, it may involve yeast cells or of higher animal cell. So this is the basic definition of biotechnology. So biotechnology में क्या होता है, एक particular cell है, उस particular cell का genome होगा, and then there will be plasmid. So इसकी वजह से plasmid will be the extra chromosomal material. So इसकी वजह से this is generally in the case of E. coli or smaller organisms. If we take E. coli for example, तो उनका जीनोम तो होगा ही होगा. So they will be having their genome. So DNA will be there. इसके साथ ही साथ what will be there? There will be you can say there will be a plasmid. So plasmid होता है. So plasmid is extra chromosomal in nature. So ये extra chromosomal है nature की. इसकी copy कितनी होती है plasmid की? It is either one per cell or two per cell. It depends on the organism to organism. So इस plasmid के पास कुछ characteristics होती है. So इसका एक particular origin of replication होता है. So there is one origin of replication which is known as ORI-C. Then उसके पास there is resistance for particular antibiotic. So या तो वो ampicillin के लिए resistance होगा या तो वो tetracycline के लिए resistant होगा. So it has yes. So either it is having tetracycline resistance or
देयर इज रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन। सो अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग वेक्टर मॉलिक्यूल में होती है, सो इसे हम लोग एक वेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। सो इसे हम लोग एक वेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली, जिससे कि हम लोग, अगर हम लोग ने पता कर लिया कि फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने पता कर लिया कि दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल एंड दिस इज द जीनोम ऑफ द सेल एंड दिस इज द प्लाज्मिड। सो अगर हमको ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड की वजह से देर इज स्ट्रेस टॉलरेंस, एक ऐसा प्लांट सिस्टम बन रहा है जो कि स्ट्रेस टॉलरेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेस टॉलरेंट का मतलब है कि इट कैन ग्रो अंडर सेवरल सेलाइन कंडीशन। सो व्हाट वी विल डू, सो वी विल टेक दिस जीन, टेक दिस प्लाज्मिड फ्रॉम हेयर। तो विद द यूजिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करेंगे उसमें, विद द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम लोग उसका जेनेटिक मेकअप में थोड़ा चेंजेस करेंगे, एंड जिससे कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। एंड देन वी विल अगेन रीइंट्रोड्यूस दिस प्लाज्मिड इनटू अनदर सिस्टम और इन अ प्लांट सेटअप। सो जिससे कि ये एक्सप्रेस होगा। सो सपोजिंगली वी इंट्रोड्यूस इन अ प्लांट सेटअप, so this will be expressed in case of plants. So so in case of plant हम लोग यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। So agrobacterium species, it is a natural genetic engineer. So agrobacterium species are used in case of plants. So basically हम लोग ने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, एंड नाउ इट कैन ग्रो इन अ स्ट्रेस टॉलरेंट कंडीशन। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, देर आर न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ हेरिटेबल मटेरियल दैट इज फॉर्म बाय इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इनटू एनी वायरस or bacterial plasmid or other vector system, so as to allow their incorporation into the host organism in which they do not naturally occur, but in which they are capable of continued propagation. तो मैंने जैसा कि बताया, दे आर नॉट, उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो नेचुरली अकर नहीं करते हैं, बट हम उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जिससे कि वो केपेबल हो जाते हैं ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोगेशन। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन्स, then there is alternation of genomes by substituting or adding genetic material. So this is what is happening in genetic engineering. So there are two types of biotechnology. One is the traditional biotechnology, which is also referred as old biotechnology. Then there is new biotechnology, which is also referred as modern biotechnology. So traditional biotechnology, for example, जैसे conventional technology होती है, जैसे conventional technology होती है that have been used for many centuries. For example, beer, wine, cheese, and many food that have been produced by traditional biotechnology. So basically, traditional biotechnology. Mrinal Kumar, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? Because this is general introduction, and very soon I will be coming to the real topic. So little bit this history is also important to know. So that is why little bit इसके बारे में जानना जरूरी है. Okay, okay, okay. So modern biotechnology में क्या होता है? There is capability of science to change the genetic material for genetic new products for specific requirement through recombinant DNA technology. So modern biotechnology में there is use of recombinant DNA technology. So Mrinal Kumar, so I have done my MTech in biotechnology and biochemical engineering from IIT Kharagpur. So and I belong to UP, basically Lucknow. So ये आइए आप लोग, अब आइए आप लोग को देते हैं कंसेप्ट। सो जिसके लिए आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग बेताब थे, सो दिस इज द कंसेप्ट। सो ये बैक्टीरिया, इसको हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, सो दैट यू कैन, ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस, यस, चैप्टर आज खत्म कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी का, बिल्कुल।
I will finish the chapter today, so there will be no problem. So आइए let's study about क्लास का टाइमिंग है. क्लास was started from 7 p.m. So class was started from 7 p.m. So जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब इस डायग्राम को देखिए. And class will be there for it will end at 8 p.m. So class will end at 8 p.m. मृणाल कुमार, क्लास खत्म करने की बहुत जल्दी है, अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है. तो आपको क्लास एंड करने की बहुत जल्दी है. जस्ट वेट एंड सी, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग क्लास. यू विल एंजॉय द क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट. डेफिनेटली आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. आप देखना इस चीज को. ओके, सो लेट मी कंटिन्यू. Mrunal Kumar, this is my first class, so I will plan accordingly. So I'll try to extend the class also. I will plan accordingly. So if needed, then I will plan one more new class also. So जैसा कि आप देख रहे हैं, this is the application of biotechnology. So अरे इतना Telegram channel, everything that will be shared, don't worry. So this is a bacterium. तो जैसा कि मैंने बताया, this is a bacterial genome, and then there is a plasmid. So plasmid को हम लोग isolate करते हैं. So this is the plasmid. So इस plasmid को हम लोग isolate करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया कि this is a gene of this is an organism जिसके जीनोम में एक पर्टिकुलर जीन है जो हमारे फायदे की है. सो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे. फिर उसके बाद उसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेंगे. उसके बाद यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देयर आर एंजाइम्स जिसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. देयर आर एंजाइम्स जिसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. सो देयर आर एंजाइम्स जिसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. सो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कैपेसिटी होती है कि ये कट्स लगा देता है. इट कैन फॉर्म कट्स. सो इट कैन फॉर्म कट्स इन द प्लाज्मिड. सो ऐसे कट्स इंड्यूस हो जाएगा, एंड देन ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे इस जीनोम में, इस जीनोम में. सो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इंक्लूड कर देंगे इस जीनोम में द जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो दैट इज द ब्लैक जीन, जो ब्लैक कलर से डिनोट हो रहा है. और उसके बाद हम लोग प्लाज्मिड को रीइंट्रोड्यूस कर देंगे इनटू द बैक्टीरियल सेल. सो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, यस वंशिका, वेरी गुड. सो ये कट करता है स्पेसिफिक साइट पे. सो मैं आपको बताता हूं. सपोजिंगली दिस इज द स्ट्रैंड. सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द केस ऑफ इको R1. So this is Escherichia coli R1 restriction enzyme, and what happens is कि इसका एक सीक्वेंस होता है. So GAA-TTC, so then there is GAA-TTC. So ये जब भी GAA-TTC आएगा वहां पे ये कट लगाएगा. सो ये कट लगाता है जब भी GAA-TTC आता है. सो इको R1 वहां पे कट लगाता है. तो या तो ये स्टैगर्ड एंड्स बनाएगा, या तो ये स्टैगर्ड एंड्स बनाएगा, या तो ये ब्लंट एंड बनाएगा. दो तरह के एंड्स बनाता है, या तो स्टैगर्ड एंड बनाएगा या तो ब्लंट एंड्स बनाएगा. सो हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके कट्स लगाएंगे, और कट्स लगाने के बाद इसको वापस हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे इन द ओरिजिनल रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम. सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया प्लाज्मिड जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने वो कर दिया है. क्या कर दिया है, जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया है. ओके, जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया है. तो देयर विल बी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम. सो नहीं मृणाल कुमार, मेरे पास टैबलेट है. देयर इज ग्राफिक टैबलेट विद मी. मैं माउस से नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मैं ग्राफिक्स टैबलेट से ही लिख रहा हूँ. सो मैं देख रहा हूँ कि आप क्लास में बाकी सारी चीजों के लिए इंटरेस्टेड हैं कंपेयर टू स्टडीज. सो आपका बहुत सारा ध्यान है कि मैं किससे करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ. सो माउस से मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी से लिख रहा हूँ. मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है.
So this is the cell which is cloned with the gene of interest. So हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को, जिसको हम लोग ने, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, जिसको हमने आइसोलेट किया था, उसे हम लोग प्लाज्मिड में इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एंजाइम का यूज करेंगे। देयर आर एंजाइम विच इज नोन एज डीएनए लाइगेज। सो एंजाइम होते हैं डीएनए लाइगेज, सो जिससे हम लोग निक्स को सील करते हैं। सो डीएनए लाइगेज से हम लोग निक्स को सील करेंगे। उसके बाद इस प्लाज्मिड को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम। सो इससे हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड क्लोन्स। और फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे मतलब का जीन था, देन ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, इस पर्टिकुलर जो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब इसकी हम लोग क्लोनिंग कर लेंगे। सो इसके बाद क्या होगा, ये किसी किसी केस में क्या होगा, इट विल बिकम पेस्ट रेजिस्टेंस। हमने देखा कि इसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट की पावर आ गई। हमने देखा कि इट इज यूज टू, इसके पास ऐसी कैपेसिटी आ गई जिससे कि ये टॉक्सिक वेस्ट को क्लियर कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडिएशन। हम लोग बायोरेमिडिएशन को भी स्टडी करेंगे। इसके पास प्रॉपर्टी आ गई है जिससे कि ये क्या कर सकता है। स्टेप 3 नहीं समझ आया सर। सो स्टेप 3 में क्या हो गया मृणाल, आप पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमारा बैक्टीरियम था जिससे कि हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया था। ये हमारा सेल था जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट था। यहां से हमने जीनोम को आइसोलेट किया। सो इस जीनोम को हम लोग आइसोलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे जो कि कट्स लगाएगा। इस प्लाज्मिड को भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे जो कि यहाँ पे कट्स लगाएगा। उसके बाद इस जीन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जीन को इंसर्ट करेंगे। सो जीन को इंसर्ट करने के बाद ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। सो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोग वापस पुट कर देंगे इन द बैक्टीरियम, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम। और यहाँ से सेल की क्लोनिंग होने लगेगी या डिजायर्ड क्लोन्स बनने लगेंगे। सो हम लोग इसके एप्लीकेशन देख रहे थे, इसके वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं। सो हमने देखा कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है टॉक्सिक वेस्ट को डिसॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अगर ब्लड में क्लॉट्स बन गया है, सो ये प्रोटीन डिसॉल्व करता है ब्लड क्लॉट्स को इन द हार्ट अटैक थेरेपी। देन देर इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो ट्रीट करता है स्टंटेड ग्रोथ को। देर इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दैट ट्रीट करता है स्टंटेड ग्रोथ को। तो जैसा कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग ने कितने सारे काम कर लिए। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह से हमने ये पाया कि हमारे लिए अगर कोई भी एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हमको पता है कि ये पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन इससे ये हमको मिलेगा, सो हम उसको यूज करके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं उसको, और हम लोग एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम बना लेते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम को फिर हम लोग क्लोनिंग करते हैं और उससे हम लोग कॉपीज ऑफ जीन को एक्सप्रेस कराते हैं। सो देयर इज अ एक्सप्रेशन सिस्टम जिससे हम लोग एक्सप्रेस कराते हैं। सो ये अलग अलग एरियाज में जहां जहां इसका एप्लीकेशन है वहां वहां हम इसको यूज कर पाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? आपको ये क्लियर समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? ओके, ओके, गुड, वेरी गुड। यस एवरीवन, वंशिका, मृणाल, सबको समझ में आया? ओके, ओके, गॉट इट। ओके, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं। सो इन केस ऑफ ह्यूमन हेल्थ केयर, सो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन इंसुलिन। सो दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फर्मेंटर्स। मैं आने वाले आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि फर्मेंटर क्या होता है बेटा। सो दिस इज द केस। ह्यूमन इंसुलिन की जरूरत क्यों बनती है, कोई बता सकता है? इंसुलिन का क्या रोल होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का रोल होता है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन का रोल होता है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन का रोल होता है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो ये शुगर का लेवल या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है।
अगर ये प्रेजेंट है तो ये डिक्रीज करेगा, अगर ये एब्सेंट है तो ये इंक्रीज करता है और इसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके लिए एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया ह्यूमंस ने, जिसे हम लोग ह्यूमुलिन भी कहते हैं। एंड ये ह्यूमुलिन जो था ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस किया था, और इसे हम लोग फर्मेंटर्स में, हम आपको दिखाते हैं व्हाट इज फर्मेंटर्स। सो इसे हम लोग बायोरिएक्टर्स में फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर करते हैं, जहां पे ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसका भी प्रोडक्शन हम लोग ने किया। देन देर इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर ऑल द हेल्थ केयर एप्लीकेशंस। ये देखिए, नाउ सी दिस डायग्राम। अगेन फिर से हमारा वही बेसिक्स, हम लोग फिर से हम बेसिक्स पे चलेंगे, जहां पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग रेप्लिकेट करने वाले हैं। सो ये हमारा ह्यूमन पैंक्रियास सेल था। सो इंसुलिन पैंक्रियास सेल से प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली बीटा सेल होती हैं, जो बीटा सेल होती हैं ऑफ पैंक्रियास, वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। सो ये हमारा ये हमारा बैक्टीरियम था। इस बैक्टीरियम के पास ये प्लाज्मिड डीएनए था। अच्छा, प्लाज्मिड डीएनए की कैपेसिटी होती, एक एक इसकी क्वालिटी होती है कि ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकता है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन कर सकता है, और इसमें हम लोग एक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को रख के एक्सप्रेस भी करा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि जो ह्यूमन का जो जीन डीएनए था उसको आइसोलेट किया, ह्यूमन पैंक्रियास सेल से जीनोम को आइसोलेट किया। वहां पर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन थी, उसको हम लोग ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। इस प्लाज्मिड को भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। दोनों को कट करने के बाद हम लोग ने लाइगेट किया। लाइगेट करने के बाद हम लोग ने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। दिस इज नाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने एक नई बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां पे इसका एक्सप्रेशन होगा। इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम कहेंगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम मल्टीप्लाई करने लगेगा और ये ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा इन द फर्मेंटेशन टैंक। सो इससे हमको ह्यूमन इंसुलिन मिल जाएगा। नाउ अगर आप देख पाएंगे, सो दिस इज द ह्यूमन इंसुलिन। जिसके बाद इंसुलिन को हम लोग रिएक्टर से निकालेंगे और उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। सो देन देयर विल प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो दिस इज द ए चेन। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। आई होप इट इज विजिबल नाउ। सो ये एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, जिसमें दिस इज द प्री इंसुलिन। दिस इज बेसिकली, इसको हम लोग प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं। सो ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है, और इसमें एक बी चेन होती है। दिस वन इज द बी चेन, दिस वन इज द ए चेन। ए चेन और बी चेन ज्वाइंट होती हैं सी चेन से। सो दिस इज द प्रो प्री इंसुलिन। ये क्या है? दिस इज प्री प्रो इंसुलिन, सॉरी, दिस इज प्री प्रो इंसुलिन। उसके बाद क्या होता है, प्री प्रो इंसुलिन में क्या होता है, देर आर फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद क्या होता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। सो प्री प्रो इंसुलिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। सो प्रो इंसुलिन में क्या होता है, there is a formation of disulfide bonds between the A chain and the B chain. So उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन का मॉलिक्यूल बन जाता है। जिसमें कि A चेन होती है और B चेन होती है एंड C चेन इज रिमूव्ड। दिस इज एन एक्टिव molecule of insulin. So this is the N terminal, this is the C terminal, this is again of the A chain, and this is the N terminal, and this is the C terminal of the B chain. So insulin molecule में there are two chain, one is the A chain, other one is the B chain, और इसके आपस में there is disulfide linkages. So उसके बाद we will be getting human insulin. So this is the insulin जिसका हम लोग यूज करते हैं in case of diabetes. So देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना यूजफुल है, वो हमको क्या क्या देता है। डिड यू गॉट दिस? आप लोग को समझ में आया? ओके, राइट।
Now if we come to scope of biotechnology, so there is gene therapy also. So basically this is a way of genetic engineering of humans, so which allow a person suffering from a disabling genetic disorder to lead a normal life. अगर किसी को genetic disorder है, सर हम एक पेज भेजे हैं आपको। विच पेज? कौन सा पेज? मंडाल कुमार, इफ यू हैव एनी क्वेरी उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। सो इफ यू आर हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर, सो उसको हम लोग अगर हमको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, सो वी विल बी यूजिंग जीन थेरेपी। सो इन विच विल बी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वो जो हमारी नॉन फंक्शनल जीन है उसे हम लोग फंक्शनल जीन से रिप्लेस करेंगे, और इससे कि क्या होगा, हमारा नॉर्मल जो लाइफ है वो बनना, नॉर्मल लाइफ हम लोग जी सकते हैं, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देन देयर इज इम्यूनोटेक्नोलॉजी। सो इम्यूनोटेक्नोलॉजी डील्स विद द इम्यून सिस्टम, जहां पे हम लोग क्रिएट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो मोनोक्लोनल, अगर जैसा शब्द बोला, अगेंस्ट वन पर्टिकुलर एंटीजन। सो एक पर्टिकुलर एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल ने, हमारा इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाया। So these are the monoclonal antibodies, and antibodies they are the specific set of proteins which are present in human जो enable करता है to fight incursions of their bodies by harmful chemicals or microorganisms. So इसी biotechnology से there is a production of monoclonal antibodies also. So आपने देखा, this is the mouse cell, this is mouse. So mouse से हमने B cell isolate कर लिया एंड हमने माइलोमा सेल ले लिया। सो माइलोमा सेल आर कैंसरस सेल। कोई बता सकता है बी सेल का क्या एडवांटेज होगा और माइलोमा सेल का क्या एडवांटेज होगा? इससे पहले हमने क्या किया था, एक एंटीजन लिया था और उसे माइस में इंजेक्ट कर दिया था। हमने एक एंटीजन लिया था और उसे माइस में इंजेक्ट कर दिया था। तो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में इस माइस के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, और वो एंटीबॉडी एक्सप्रेस कहां पे होंगी? ओके ओके, आई विल टेल यू। सो देखो, जो बी सेल होंगी, बी सेल से क्या होगा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और जो कैंसरस सेल होगी उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी, देर इज अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन, देर इज अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन। सो इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। जस्ट अ मिनट। सो जो माइलोमा सेल्स है उसके पास कैपेसिटी है टू डिवाइड, इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, और ये मल्टीप्लाई कर सकता है वेरी फास्ट, इट कैन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। बी सेल से क्या होगा, बी सेल से हमको मिलेंगी एंटीबॉडीज, बी सेल हमको देंगी एंटीबॉडीज। सो बी सेल विल बी गिविंग एंटीबॉडीज। अब हम क्या करते हैं, इस माइलोमा सेल और इस बी सेल को फ्यूज कर देते हैं। तो इसकी फ्यूज करने के बाद हाइब्रिडोमा सेल बनती है। इसकी फ्यूज होने के बाद क्या बनती है? हाइब्रिडोमा सेल। और ये हाइब्रिडोमा सेल एनकोड करती है अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये हाइब्रिडोमा सेल एनकोड करती है अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये आपकी बन गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बनी हुई है। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आई पूरी पिक्चर? डिड यू अंडरस्टैंड? गाइस, आपको समझ में आया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनी तो उससे क्या फायदा होगा? सो ये जो हाइब्रिडोमा सेल होगी इसके पास कैपेसिटी होगी, वो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा और वो बहुत बार रेप्लिकेट भी करेगा। उसके बाद आता है जीन थेरेपी, उसके बाद आता है जीन थेरेपी।
सो जीन थेरेपी में क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग ने सेल, मान लीजिए कोई फॉल्टी जीन है, देर इज सम फॉल्टी जीन जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज इज देयर, सो व्हाट वी विल डू, वी विल हार्वेस्ट दैट दो सेल्स फ्रॉम द पेशेंट। उसके बाद हम लोग अपनी जीन लेंगे और एक वायरस होगा लैब में, उस वायरस को ऑल्टर्ड करेंगे सो दैट इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसके बाद क्या करेंगे, उसी वायरस में अपनी जीन इंसर्ट कर देंगे हम लोग। सो वी विल इंसर्ट द जीन इनटू द वायरस, एंड this altered virus is mixed with the patient cell. So जो सेल्स होंगी वो जेनेटिकली ऑल्टर्ड हो जाएंगी और ऑल्टर्ड सेल को इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट की बॉडी में, और ये जो ऑल्टर्ड सेल होंगी वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। So there is a severe combined immunodeficiency disease which is also known as SCID. So there is a severe combined immunodeficiency disease which is also known as SCID. So which is produced. So then there is ADA deficiency, adenosine deaminase deficiency. ये अलग अलग एंजाइम के लिए हम लोग यूज करके इसको अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। So gene therapy is also one of the applications of biotechnology. उसके बाद आता है टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर दोनों जगह होता है, टिश्यू कल्चर होता है इन केस ऑफ प्लांट्स में भी, इन केस ऑफ एनिमल्स में भी। सो दे आर यूज फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ एलीट और एक्सोटिक मटेरियल सच एज ऑर्किड्स का केस में प्रोडक्शन अगर करना है, या कोई यूजफुल कंपाउंड है जैसे टैक्सोल। सो टैक्सोल अगर निकल रहा है, दैट इज वाइडली यूज एंटी कैंसर ड्रग। या फिर वैनिलिन है जिससे हम लोग वेनिला फ्लेवर बनाते हैं। So what we do is we do the preparation in the laboratory of natural tissues such as arteries for arterial graft or skin. For skin burn victims. So this is how tissue culture is done. So देखिए ऐसा टिश्यू कल्चर होता है, ये हमारा टर्निप है। अब इस टर्निप से हमको एक नया प्लांटलेट बनाना है। सो हमने क्या किया, इसका यहाँ से एक एपिकल मेरिस्टेम वाला ले लिया, टिश्यू ले लिया। इसे हम लोग कहेंगे एक्स प्लांट। नाउ दिस टिश्यू इज नोन एज एक्स प्लांट। इस एक्सप्लांट को हम लोग एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट मीडिया से ये न्यूट्रिशन लेगा और एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसे हम लोग कैलस कहेंगे। कैलस के बाद ये एम्ब्रियोइड बनेगा, और एम्ब्रॉयड के बाद ये एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के आने के बाद इसमें रूट्स और शूट्स आ जाएंगे जिससे कि एक प्लांटलेट बन जाएगा। एंड दैट इज एट द टिश्यू टेस्ट ट्यूब लेवल, दैट इज एट द टेस्ट ट्यूब लेवल। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसको हम लोग फील्ड कंडीशंस में ले जाएंगे, एंड वहां पे हम इसको प्लांट कर देंगे जिससे कि हमको हमारा प्लांट मिल जाएगा। तो समझ में आया हाउ टिश्यू कल्चर हैज बीन डन? डिड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टिश्यू कल्चर हैज बीन डन? Yes guys, okay, so this is an application of tissue culture. उसके बाद देन देयर इज अगेन, इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सो वहां पे स्टेम सेल टेक्निक्स हैं। सो हम लोग स्टेम सेल्स को आइसोलेट करते हैं। स्टेम सेल्स के पास क्या कैपेसिटी होती है? सो स्टेम सेल्स या तो टोटीपोटेंट होंगी, या प्लूरीपोटेंट होंगी, या मल्टीपोटेंट होंगी। मतलब स्टेम सेल से एक पर्टिकुलर ऑर्गन पूरा बन सकता है, या उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। सो अलग अलग टाइप की स्टेम सेल होती हैं। सो देर इज मल्टीपोटेंट, देर इज यूनिपोटेंट, एंड देन देर इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं स्टेम सेल्स को फ्रॉम वेरियस टिश्यूज, और उसको डेवलप कर देते हैं इनटू डिजायर्ड टिश्यूज विच कुड देन बी यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। सपोजिंगली हमने एक स्टेम सेल लिया, स्टेम सेल को आइसोलेट किया फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आइसोलेट करते हैं जो कि ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है, वहां से एम्ब्रियो को आइसोलेट करते हैं। अब क्या होगा,
ये जो स्टेम सेल हमने आइसोलेट किया, इसके पास कैपेसिटी है, कोई भी ऑर्गन बना सकता है। तो लैब कंडीशन में हम लोग इससे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेम सेल से वो पर्टिकुलर ऑर्गन बना लेंगे और उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे इनटू अनदर इंडिविजुअल। Then there are some new DNA technologies such as DNA fingerprinting, there is sequencing of genomes, then there is development and use of new molecular markers for plant identification and characterization. So this is the case of new DNA technologies. So this is the case of new DNA technologies that include DNA fingerprinting, which includes sequencing of genomes. Then there is development and use of new molecular markers for plant identification and characterization. So this is how, so ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का एम्ब्रियो होगा। इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के एम्ब्रियो के इनर सेल मास से हम लोग वो निकालेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल निकालेंगे। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को पास कैपेसिटी होगी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सो इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के पास कैपेसिटी होगी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये किसी किसी केस में जाके नर्व सेल बना लेगा, किसी केस में जाके ब्लड सेल बना लेगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेम सेल के प्रोडक्ट्स को वापस इंसर्ट कर सकते हैं उस इंडिविजुअल्स में जहां इसकी जरूरत है। सो दिस इज हाउ वी विल टेक द स्टेम सेल्स। सो दिस इज द स्टेम सेल थेरेपी। सो सपोजिंगली दिस इज द पेशेंट जिसके केस में हमको, दिस इज द पेशेंट जिसके केस में हमको जरूरत है। एंड उसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने बताया आपको कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, जिसके इनर सेल मास से हम लोग वो निकालते हैं, सेल्स निकालते हैं। सो देर इज अ स्पर्म एंड देन देर इज अ oocyte। सो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। सो इट विल बिकम अ फर्टिलाइज एग, देन इट विल बिकम मोरुला। सो इसमें मोरुला बनेगा। उसके बाद क्या होगा, मोरुला बनने के बाद जो इनर सेल मास है उसको हम लोग जब निकाल लेंगे और उसका हम लोग जब प्रोपोगेशन करेंगे इन सेल कल्चर सिस्टम, सो ये प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बन जाएगा। सो ये बन जाएगा प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब इस प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के पास कैपेसिटी है, इट कैन फॉर्म ब्लड सेल और इट कैन फॉर्म इंटेस्टाइनल सेल, इट कैन फॉर्म न्यूरॉन्स। सो एक ही स्टेम सेल से आप देख रहे हैं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बन रहे हैं। Then there is a heart cell formation also. Then there is a liver cell formation also. Then pancreas में islet cell बन रहे हैं जिससे कि हम लोग इंसुलिन का प्रोडक्शन करा सकते हैं। मृणाल कुमार, आप थोड़ा सा वेट करेंगे? इफ यू हैव पेशेंस देन प्लीज वेट और एल्स यू कैन गो फ्रॉम द क्लास। बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स नहीं बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं आपको, प्रोसेस नहीं बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं आपको। दिस इज व्हाट इज देयर इन द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। स्टार्टिंग में जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताया था वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल था। ये सभी आप लोग को पढ़ाना है, ये सभी आप लोग को पढ़ाना है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन देर इज ऑर्गेनो ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता है। सो दैट इज द ट्रांसप्लांटेशन इनटू द ह्यूमंस ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम अदर एनिमल्स। सो देन देर इज बायोरेमिडिएशन। सो बायोरेमिडिएशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज करते हैं। बायोरेमिडिएशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं जिससे कि हम लोग डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं पॉल्यूटेंट्स को। मृणाल कुमार, दिस इज माय फर्स्ट क्लास एंड मैं सीरीज में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि सीरीज में आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। सो क्वेश्चंस विल बी रैंडम ओनली। सो कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है, वही कंसेप्ट का यूज हो रहा है।
यस, इट इज लाइक दैट ओनली. सो जब प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, देन यू कैन अंडरस्टैंड. नो, shut up. You can please go from the class if you are not interested. Please don't disturb others. So bioremediation is the use of microorganisms to detoxify the pollutants that are present in the environment, usually as soil and or as water sediments. So हमने हमने ये देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटामिनेंट साइट. सो एक पर्टिकुलर हम लोग बैक्टीरियम को ले लेंगे. सो फॉर एग्जांपल ये सूडोमोनास पुटेदा की स्पीसी है. सो दिस इज अ स्पीशी ऑफ सूडोमोनास. So this is a species of Pseudomonas putida. So इसको हम लोग इसके पास कैपेसिटी है, सो इट कैन क्लीन अप द ऑयल. सो इसको हम लोग लेकर आएंगे और कंटेमिनेंट साइट पे जाएंगे. सो इसको ये कन्वर्ट कर देगा टू नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स में. सो बायो रेमिडिएशन होता है, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स. एक में होता है देर इज बायो स्टिमुलेशन, देन देर इज बायो ऑगमेंटेशन, देन देर इज इंट्रिंसिक बायो रेमिडिएशन. सो बायो स्टिमुलेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेट करते हैं टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडिएशन, और न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस को हम लोग सॉइल्स में रिलीज कर देते हैं, जहां से रिमूव कर दिया जाता है कंटामिनेंट्स को. सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ गैस और लिक्विड. सो इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ जाती है माइक्रोब्स की इन दैट एरिया. सो एज अ रिजल्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव द कंटामिनेंट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली. Mrinal Kumar, okay, please bear. So I will take your recommendation. Yes, you are not telling something bad. अब शांत हो जाओ and let me teach. Okay, I'll try to teach in series. Okay. उसके बाद एप्लीकेशन आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. तो ह्यूमन का जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है, दैट हैव बीन सीक्वेंस, and chromosome map have been developed in various laboratories worldwide through coordinated efforts. Then there is bioinformatics. So there is application of information sciences to increase the understanding of biology, biochemistry and biological data. So हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का कंप्यूटर साइंसेस का कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो अपलोड यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं, जिससे कि हम लोग इम्प्रूव करते हैं बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल डेटा. अब आता है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देर इज बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. तो जहां पे होल सेल्स आते हैं. एनसीईआरटी स्लाइड पढ़ाओ. एनसीईआरटी स्लाइड इंक्लूड करूंगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. यस. सो दिस इज द बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोग यूज करेंगे लिविंग सेल्स या कंपोनेंट्स ऑफ देम टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. Then there are most common whole cells which are used, such as yeast and bacteria. So there are most common components that are enzymes जो catalyze करते हैं chemical reaction. Then there are microbial fermentation. There is microbial fermentation. So जैसा कि मैंने बताया, we isolate the cells from animals and plants to produce desired products.
So this is the example of a particular bioreactor. So this is the acid base control. So ये एक डायग्राम है ऑफ अ पर्टिकुलर बायोरिएक्टर. सो इसी बायोरिएक्टर में जो 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 बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं इसी में प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो दिस इज द फिल्टर एंड दिस इज द मोटर. सो देन देयर इज अ सील्ड. क्लोनिंग वेक्टर का क्या करना है अभी अभी बायोरिएक्टर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो. So this is the jacket. These are the cooling jacket जहाँ से water आ रहा है. And this is the baffles. So baffle का use है mixing में. So this is part one of the class. This is overview class. उसके बाद there will be part two class also. So don't worry. ये impellers हैं जो कि proper mixing कराते हैं. Then there are sensors for pH temperature and oxygen concentration. So this is the agitator shaft and this is the exhaust. तो ये मैंने बता दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है. हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं जीन्स को टू अ डीएनए. आ रहा हूँ आपके क्लोनिंग वेक्टर पे आ रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. प्लीज गिव मी अ टाइम. 2 मिनट का समय दो मेरे को. सो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो इस टेक्निक में वी रिमूव, वी मॉडिफाई और वी ऐड द जीन्स टू डीएनए मॉलिक्यूल टू चेंज द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स. सो यस. जस्ट अ मिनट. सो ये पेज आपको समझ में नहीं आया था. ओके. कल का टॉपिक वंशिका आई विल अपडेट यू. आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए. यू प्लीज फॉलो माय प्रोफाइल. क्लास कल होगी कि परसों आई लेट यू नो. देखो, यस क्लास कल होगी परसों. आई विल अपडेट इट. बट होपफुली न्यू ईयर से क्लासेस मेरी रेगुलर होंगी. सो मैं पहले मृणाल जी का क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ. मृणाल इधर आओ. सो आपको क्लोनिंग वेक्टर नहीं समझ में आया था. सो क्लोनिंग वेक्टर में क्या समझ नहीं आया था. देखो, ये एक वेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहां पे है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. दिस इज द ओरी सी साइड. इसे कहते हैं हम लोग ओरी सी साइड. दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उसके बाद देर आर साइड्स फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. ठीक है, एम्पिसिलिन आ गया. कभी कभी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों होता है. ठीक है. और ये जो सीरीज ऑफ वेक्टर होता है, दिस इज पीयूसी 18. ये पीयूसी 18 सीरीज ऑफ वेक्टर हो गया. और इट कैन बी पीबीआर 322. इट कैन बी पीबीआर 322. सो मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कराऊंगा. सो उसमें मैं डिफरेंट तरह के वेक्टर्स को डिस्कस करूंगा. अगर आपको तो अभी क्लोनिंग वेक्टर पता है, देर आर एक्सप्रेशन वेक्टर्स ऑल्सो. सो हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे. सो विल स्टडी अबाउट एक्सप्रेशन वेक्टर. देन देर इज क्लोनिंग वेक्टर तो है. देन देर आर शटल वेक्टर्स. सो देर आर शटल वेक्टर्स ऑल्सो. सो क्लोनिंग वेक्टर हैं, शटल वेक्टर्स होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं. तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ वेक्टर्स. सो लेट मी एक्सप्लेन. एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे साइट्स होती हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल, this is the site for eco R1, Escherichia coli R1 strain. This is the site for
सपोजिंगली देयर इज अ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM H1, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया है. दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो मृणाल, आपको समझ में आया क्लोनिंग वेक्टर के बारे में? इसी को क्लोनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी वेक्टर को फिर हम लोग लेके जाते हैं और बैक्टीरिया में. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया देन आपको कोई नहीं समझा सकता. आई एम वेरी सॉरी. मैंने इतने अच्छे से बताया और आप फिर से कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया. सो दिस इज योर प्रॉब्लम. आप फिर से लेक्चर को सुनो. इस वेक्टर मॉलिक्यूल को हम लोग ले जाते हैं और वापस हम लोग बैक्टीरियल सेल में डालते हैं. दिस इज द बैक्टीरियल जीनोम एंड दिस इज द प्लाज्मिड. जहां पे हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये इसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर देगा. इसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर. अब आइए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं. देखो, अगर हम लोग को एक ऐसा प्लांट चाहिए, अगर हम लोग को ट्रांसजेनिक. ओके मृणाल बेटा, प्लीज गिव मी सम टाइम. मैं सब कुछ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं. प्लीज गिव मी सम टाइम. प्लीज बेयर विद मी. बच्चे की जान लोगे क्या? एक ही दिन में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. यू प्लीज गिव मी सम टाइम. टाइम दो. आई ट्राई टू चेंज. ओके. This is the Agrobacterium tumefaciens bacterium. This is the Agrobacterium. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बताऊंगा. आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज टू शेयर द टेलीग्राम चैनल. अभी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है. I can give you my number. Don't worry. I'll give you my number. But I don't know whether I can give you my contact number or not. पहले आप समझ लीजिए. पहले आप क्लास समझ लीजिए. हमको एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है. ट्रांसजेनिक प्लांट क्या बनाना है? ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? वो प्लांट जिसमें दूसरी जीन भी होगी अपने खुद की जीनोम के अलावा. आप इस पे ईमेल कर दो. दिस इज माय ईमेल आईडी. आप इस पे ईमेल कर दो आपकी क्वेरी जो भी है. ये मेरी ईमेल आईडी. इस पे आप ईमेल कर दो. देन आई विल शेयर द डिटेल्स. अगर हमको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है, वो पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा जीन होती है. ठीक है. और उस जीन से या तो इंसेक्ट का रेजिस्टेंस आ रहा होगा या तो फिर ड्राउट रेजिस्टेंट वो हो जाएगा. ओके. This is the Agrobacterium tumefaciens bacterium. Supposingly we want to create a transgenic plant.
सो हम लोग क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस लेंगे, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, इससे हमको मिलता है टीआई प्लाज्मिड, इससे हमको मिलता है टीआई प्लाज्मिड। सो इस प्लाज्मिड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियम और टी डीएनए को कट करते हैं फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको हम लोग लेकर आएंगे और एक रिकॉम्बिनेंट टीएनए प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड बनाएंगे। सो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे इनटू द टी डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड, जिससे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा। इस प्लाज्मिड को हम लोग बैक्टीरियम में रीइंसर्ट करेंगे और ये जो बैक्टीरियम होगा ये इंसर्ट करेगा टी डीएनए का, कैरिंग द फॉरेन जीन इनटू द क्रोमोसोम ऑफ अ प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल को हम लोग ग्रो कराएंगे कल्चर में। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि एक प्लांट जनरेट होगा फ्रॉम सेल क्लोन, and all of the cells carry the foreign gene and may express its new trait. So this is one of the methods of generating. Sorry, this is one of the methods of generating the transgenic plants. So ये कुछ practical applications हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें there is better crops, there is improved animal health. In case of medical and healthcare application, there are new tests, there are new vaccines, then there are new medicines. इसके कुछ केमिकल और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस भी हैं, जहां पे बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, जहां पे इम्प्रूव्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो ये एग्जांपल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर एप्लीकेशन जहां पे हम इम्प्रूव क्रॉप्स बना रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करी है, जिसकी वजह से दिस प्लांट इज बिकमिंग इंसेक्ट टॉलरेंट, it is becoming tolerant to herbicide, it is becoming tolerant to environmental stress such as drought, heat, cold, and it can create disease also. And then insect resistant trees are there to help meet the demand for wood. So there is cry genes, so there are cry genes, so इससे insect tolerant हम लोग plant बनाते हैं, insect resistance plant बनाते हैं हम लोग। So this is how we clear the herbicide. Basically Abdul Rafiq, herbicide is basically a kind of you can say, if you explain it, just a minute. सो ये सब्सटेंस होता है, हर्बिसाइड एक सब्सटेंस होता है जो कि टॉक्सिक होता है प्लांट्स को, और ये डिस्ट्रॉय करता है अनवांटेड वेजिटेशन को। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ टीआई प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से, और ये क्राउन गॉल फॉर्मेशन करता है। सो इसे हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। This has been asked several times in the exam. Then this is some of the agriculture applications where there is improved animal health, जहाँ पे there is better detection of disease, where there is more nutritious feed, where there are new and effective vaccines, when there are improved treatment of diseases. So these are some of the medical and healthcare applications. तो जहाँ पे नए treatments बन चुके हैं, there are new diagnostic tests that have been made. So एक PCR का टेस्ट है। सो अभी हम लोग को कोविड हुआ है, सो कोविड के समय देयर इज अ पीसीआर का प्रोसेस, सो जिससे कि जीनोम का रेप्लिकेशन हो जाता है मल्टीफोल्ड टाइम्स। सो दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो देन देयर आर केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो कि यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन इंडस्ट्रियल वेस्ट, to make biodegradable plastic. So these are all the applications. So ये मेरी जनरल क्लास थी। Now there are some issues about biopiracy. So आप लोग पढ़ के आना what is there in biopiracy. So financial gains के लिए कुछ लोग piracy करते हैं, so this is known as biopiracy. So thank you guys, thank you for your cooperation.
So I hope the session was useful. Please do like and share and follow my profile. Thank you so much.